کیا کرتا مجبوری تھی۔ وہ سب آگے بڑھنے لگے۔ کافی دور تک آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک اوپر درختوں سے ان پر ایک بڑا جال آن پڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے جال کھینچا جا چکا تھا۔ وہ سب بے بسی سے ہاتھ مارتے رہ گئے۔ جال میں وہ بری طرح پھنس چکے تھے اور سب ایک گٹھری کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کی مشین گنیں بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر جال میں ہی الٹ پلٹ ہو گئی تھیں۔ پھر وحشیوں کے زوردار وحشیانہ نعروں سے جنگل گونج اٹھا۔ پھر ارد گرد کے درختوں سے وحشی ہی وحشی کودنے لگے۔ جلد ہی وہ اس جال کے قریب آ کر ناچنے لگے۔ صفدر اور اس کے ساتھی پوری طرح بے بس ہو چکے تھے۔ پھر اس گروہ کا سردار آگے بڑھا۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا اور پھر جال کی رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ نیزوں کی نوک پر ان سب کو فردن فردن باہر نکالا گیا۔ ان کا سب سامان ان کے ساتھ سے لے لیا گیا۔ مشین گنیں بھی وحشیوں نے اٹھا لی۔ ویسے ان کے پکڑنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس کا استعمال نہیں جانتے۔ صفدر پریشان تھا کہ کہیں انتقامی کارروائی کے تحت وہ لوگ انہیں یہی نیزے مار مار کر مار نہ دیں، مگر وحشیوں نے نیزے کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور پھر وہ شور مچاتے ہوئے وحشیوں کے حصار میں آگے بڑھنے لگے۔ جلد ہی ایک کھلے میدان میں بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر جیسے جیسے وہ بستی کے قریب ہوتے گئے، وحشیوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ وہ بری طرح شور مچا رہے تھے۔ ان کے لہجوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سخت غضبناک ہیں۔ شاید انہیں اپنے ساتھیوں کی موت کا غصہ تھا۔ جلد ہی وہ بستی کے سامنے ایک وسیع میدان میں پہنچ گئے۔ وحشیوں کا سردار بھی اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ اس نے چیخ کر ہجوم سے کچھ کہا، اور پھر ان سب کو ایک جھونپڑی میں بند کر دیا گیا، اور وحشی نیزے تان کر باہر پہرا دینے لگے۔ ان کا سامان شاہی جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا۔ اب سارا ہجوم میدان میں اکٹھا تھا، اور شور و غل سے کان پڑی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سردار چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ شور و غل کم ہوتا گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہجوم پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب صرف سردار کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے سردار بولتا رہا، پھر ہجوم خاموشی سے بکھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میدان خالی ہو گیا۔ سردار وہاں کافی دیر رکا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ڈاکر ایک بڑے سے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر دروازہ کھلا اور نمبر 6 اندر داخل ہوا۔ باس، ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے، نمبر 6 نے مؤدبانہ طور پر ڈاکر سے کہا۔ ویری گڈ، کیا اسے فضا میں ہی تباہ کیا گیا ہے؟ ڈاکر نے پوچھا۔ یس باس، مگر باس، ہیلی کاپٹر کے ٹکڑوں کا معائنہ کرنے کے بعد ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے ٹکڑوں کے ساتھ کسی آدمی کی لاش یا اس کے جسم کے حصے نہیں ملے، نمبر 6 نے کہا، اور ڈاکٹر کے چہرے پر ایک بار پھر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیلی کاپٹر کو فضا میں تباہ کیا جائے اور اس میں کوئی آدمی نہ ہو؟ اسے روحیں چلا رہی تھی کیا؟ ڈاکٹر کا لہجہ خطرناک تھا، جیسے اسے اس مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اسی لیے میں حیران ہوں۔ میں تو بڑی اچھی طرح ارد گرد کا علاقے میں تلاشی لے کر آیا ہوں، مگر کسی بھی آدمی کی کوئی انگلی تک بھی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی سامان وغیرہ بھی بکھرا ہوا نظر آیا۔ صرف ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے ہی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، نمبر 6 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تباہ ہونے سے پہلے اس میں سے آدمی کودے تھے؟ ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، البتہ ایک دفعہ ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر کے لیے روڈ پر سے غائب ہوا، مگر جلد ہی وہ دوبارہ نظر آ گیا، اور پھر کافی نزدیک آنے پر راکٹ مار کر تباہ کر دیا گیا، نمبر 6 نے جواب دیا۔ عجیب بات ہے۔ اس سے تو یہی مطلب واضح ہوتا ہے کہ خالی ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کر رہا تھا، جو قطعی ناممکن ہے، ڈاکٹر نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، نمبر 6 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ دونوں خاموش تھے، اپنی اپنی سوچوں میں غرق، کہ اچانک دروازہ کھلا اور پھر میگانا کی شکل نظر آئی۔ اجازت ہے باس؟ اس نے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یس، کم ان، ڈاکٹر نے میگانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے نمبر 6 اور میگانا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک کرسی سنبھال لی۔ رپورٹ، ڈاکٹر نے میگانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، میں نے وحشی قبیلے کو ان لوگوں کی تلاشی کا حکم دے دیا تھا، چنانچہ تمام قبیلہ ان کی تلاش میں اپنی سرحدوں میں پھیل گیا۔ ابھی مجھے سردار نے اطلاع دی ہے کہ 4 آدمی اور 3 آدمیوں کی 2 پارٹیاں گرفتار ہوئی ہیں۔ ان دونوں پارٹیوں کو علیحدہ علیحدہ جھونپڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک پارٹی نے مشین گنوں سے فائرنگ کر کے قبیلے کے 50 آدمیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ پہلی پارٹی خاموشی سے گرفتار ہو گئی تھی۔
पहली पार्टी का लीडर एक अहमक नौजवान है जो अपने आप को देवता बतलाता है। मेघाना ने तस्वीर से रिपोर्ट दी। वेरी गुड, वही अहमक नौजवान तो सारे फसाद की जड़ है। मुझे खुशी हुई तुम्हारी रिपोर्ट से मेघाना। डॉक्टर का लहजा खुशियों से भरपूर था। अब बॉस, उनके मुतालिक क्या हुक्म है? मेघाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज रात जश्न मनाने का हुक्म दे दो, जिसमें तुम भी शरीक होगी और तुम्हारे खास गुलामों की हैसियत से हम भी। फिर उन सबको भेंट चढ़ा दो। मेरे ख्याल में ये उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा आप हुक्म करें। फिर जश्न का हुक्म दे दिया जाए? मेघाना ने पूछा। हाँ हाँ, दे दो, डॉक्टर ने फैसला कुन लहजे में कहा। ओके, मैं अभी हुक्म देती हूँ, मेघाना ने उठते हुए कहा और फिर वो सलाम करके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने नंबर 6 से कहा। क्यों नंबर 6, मैंने इनके लिए ये सज़ा ठीक तजवीज़ की है? डॉक्टर ने कहा। यस बॉस, इससे बड़ी सज़ा उनके लिए और क्या हो सकती है कि वैसी उनके जिस्म के टुकड़े करके खा जाए। नंबर 6 ने खुशामदा लहजे में जवाब दिया। तो ठीक है, तमाम स्पेशल मेंबर्स को इतला दे दो कि उन सब ने आज जश्न खास में शामिल होना है। डॉक्टर ने नंबर 6 को हुक्म दिया। बेहतर सर, नंबर 6 ने कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर थोड़ी देर वहाँ कमरे में बैठा रहा। फिर वो उठा और कमरे से बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और फिर एक राहदारी में तेज तेज कदम उठाता हुआ बढ़ता चला गया। झोंपड़ी में कैद हुए उन्हें 2 घंटे गुजर चुके थे। जिस वक्त वो कैद हुए थे तकरीबन शाम हो रही थी, इसलिए जाहिर है अब रात का अंधेरा शुरू हो गया था। मोसियो नशारा, मेरी बात सुनो। इमरान ने ब्लैक जीरो को झोंपड़ी के एक तरफ आने का इशारा किया। ब्लैक जीरो उठकर उधर चला गया। हमें अब हाथ पैर चलाने चाहिए, वरना चूहे की मौत मारे जाएंगे, इमरान ने ब्लैक जीरो के कान में सरगोशी करते हुए कहा। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने संजीदगी से जवाब दिया। बाहर पहरेदार वैशी हैं, मेरे ख्याल में उन्हें अंदर खींच लिया जाए और फिर उनका मेकअप करके हम दोनों निकल चलें। बाहर निकल कर ही कुछ कर सकते हैं, इमरान ने तजवीज़ पेश की। जी हाँ, ख्याल तो अच्छा है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। मगर एक बात है, ये लोग तकरीबन बढ़ाना है। अब उनके मेकअप का मतलब ये है कि हमें भी उन्हीं की तरह होना पड़ेगा। इमरान के चेहरे पर शरारत थी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ब्लैक जीरो ने हिचकिचाहट के आलिम में कहा। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से निकलकर असल मुजरिमों का सुराग लगाओ और फिर उन में से किसी का रूप धार लो। इस तरह आसानी हो जाएगी। इमरान ने मुतबादिल तजवीज़ पेश की। जैसा आप कहें, ब्लैक जीरो ने उसकी तजवीज़ को मान लिया। ठीक है, ये झोंपड़ी इतनी मजबूत नहीं है, इसकी पिछली दीवार को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है, इमरान ने फैसला को लहजे में कहा और फिर वो दोनों झोंपड़ी की पिछली दीवार के करीब आ गए। इमरान ने कोट के अंदर हाथ डालकर एक छोटा मगर तेज खंजर निकाल लिया और फिर चंद लम्हों बाद उसने बड़ी एहतियात से पुष्टी दीवार का इतना बड़ा हिस्सा काट लिया कि ब्लैक जीरो आसानी से निकल जाए। झोंपड़ी सरकंडों की बनी हुई थी, इसलिए उसे काटने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हिस्सा कटते ही पहले इमरान ने बाहर झांक कर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने ब्लैक जीरो को इशारा किया और ब्लैक जीरो बाहर निकल गया। इमरान ने ब्लैक जीरो के बाहर निकलते ही वो टुकड़ा दोबारा वहाँ इस तरह टिका दिया कि पहली नज़र में महसूस भी नहीं होता था कि यहाँ से टुकड़ा काटा गया है। ब्लैक जीरो रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी जेब में रिवॉल्वर मौजूद था, इसलिए उसे मजीद इत्मीनान नहीं था। जल्द ही वो झोंपड़ियों से बाहर काफ़ी दूर चला गया। यहाँ से घना जंगल शुरू हो रहा था। अब उसे तलाश थी असल मुजरिमों के ठिकाने की। जंगल में पहुँचने के बाद वो खुद खड़ा हुआ और फिर बहुत होशियारी से आगे बढ़ने लगा। अचानक वो ठिठक कर एक दरख्त की आड़ में हो गया, क्योंकि उसने पीछे एक आदमी के आगे आने की आवाज़ सुनी थी। जल्द ही वो आदमी नजर आ गया। ये वहशियों का सरदार था, जो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वो उस दरख्त से आगे निकल गया जहाँ ब्लैक जीरो छुपा हुआ था, तो ब्लैक जीरो भी बड़ी एहतियात से उसका ताक़ुब करने लगा। बेहद एहतियाती करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सरदार उसके ताक़ुब से होशियार हो जाए। वो बस्ती से काफ़ी दूर आ चुके थे। अचानक उसने सरदार को एक बहुत बड़ी झाड़ी के करीब उठते देखा। ब्लैक जीरो भी ओट में हो गया। सरदार ने नीचे झुककर झाड़ी की जड़ की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर उसने उठकर एक दफ़ा तेज देखा और फिर झाड़ी को पकड़कर एक तरफ कर दिया। खासे रुतबे पर छाई हुई झाड़ी अपनी जगह से हटती चली गई। फिर वो नीचे उतरता चला गया।
वहाँ शायद नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, क्योंकि सरदार का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ब्लेक जीरो की नजर से गायब हुआ था। उसके गायब होते ही झाड़ी दोबारा अपनी जगह पर आ गई। ब्लेक जीरो चंद मिनट तक रुक कर वहीं इंतजार करता रहा। फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस झाड़ी की तरफ बढ़ा। झाड़ी के करीब रुककर उसने एक बार अपने इर्द गिर्द मुहताज नजरें डाली, मगर आसपास कोई आदमी मौजूद नहीं था। उसने झुककर झाड़ी की जड़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ झाड़ी की मोटी जड़ पर रेंगता रहा। फिर अचानक एक छोटी सी कील से उसका हाथ टकराया। उसने कील के सिरे को दबा दिया। झाड़ी की जड़ दो हिस्सों में तकसीम हो गई। उसने झाड़ी उठाकर एक तरफ कर दी। झाड़ी एक तरफ करते ही नीचे गड्ढे में जाती हुई सीढ़ियां उसे नजर आ गईं। वो एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर झाड़ी खींची और उसकी जड़ वहीं रख दी जहां से उसने अलहदा किया था। कील खटक होकर जुड़ गई। अब वो इत्मीनान से नीचे सीढ़ियां उतरता चला गया। वैसे उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। सीढ़ियां तादाद में तकरीबन 40 के करीब थी। जब सीढ़ियां खत्म हुई तो वो एक दरवाजे के सामने था। दरवाजा बंद था। उसने एहतियात से इधर उधर देखा। दरवाजे के कोने में एक सुर्ख रंग का बटन दबते ही दरवाजा खुलता चला गया। एक लम्हे के लिए वो रुका, फिर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक वसी मैदान था जिसे बाकायदा काट कर बनाया गया था। ऊपर से ढका हुआ था। कंक्रीट की मजबूत छत थी। इस मैदान में एक तरफ राहदारियां और बड़े बड़े कमरे बने हुए थे और कई सफेद पाम वहां चलते फिरते नजर आ रहे थे। ब्लेक जीरो ने सिर्फ एक लम्हे के लिए जायजा लिया। फिर वो एक सुकून की ओट में हो गया कि कहीं किसी की नजर उस पर ना पड़ जाए, मगर हर शख्स अपने अपने ख्याल में मस्त था, इसलिए किसी ने ब्लेक जीरो की तरफ तवज्जो न दी। फिर वहाँ और सयाह फाम भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। ब्लेक जीरो चंद लम्हे तक वहाँ रुकने के बाद बड़ी एहतियात से आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक राहदारी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये एक खासी वसी राहदारी थी जिसमें दूर दूर तक कमरों के दरवाजे मौजूद थे। ब्लेक जीरो नॉर्मल अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक उसे सामने से दो सयाह फाम हाथ में मशीन गन उठाए आते नजर आए। शायद वो मुहाफिज थे। ब्लेक जीरो ने सोचा कि उसका लिबास इस किस्म का है कि नजदीक पहुंचकर वो जरूर शक करेंगे। चुनाचे उसने कमरे में दाखिल होने का फैसला कर लिया और फिर जिस कमरे का दरवाजा खुला हुआ नजर आया वो एक झटके से अंदर दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होते ही फौरन दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही वो दरवाजा बंद करके मुड़ा वो चौंक पड़ा, क्योंकि सामने के दरवाजे के पीछे से नजदीक आते हुए कदमों की आवाज आ रही थी। ब्लेक जीरो ने इंतहाई तेजी से एक सोफे की आड़ ले ली। अब वो महफूज था। उसकी पुश पर दीवार थी और सामने सोफा। अब जब तक कोई शख्स खास तौर पर सोफे के पीछे आकर चेक न करे, ब्लेक जीरो को नहीं देख सकता था। दूसरे लम्हे उसके कान में सामने वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर उसने जरा झुककर देखा तो एक सफेद फार्म कमरे में दाखिल हो रहा था। उसने एक नजर बंद कमरे के दरवाजे पर डाली। चंद लम्हे तक कमरे के दरमियान खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर उसी सोफे पर बैठ गया जिसके पीछे ब्लेक जीरो मौजूद था। ब्लेक जीरो सांस रोके वहां पड़ा रहा। फिर उसके कानों में टेलीफोन से डायल करने की आवाज आई। ब्लेक जीरो मुजरिमों के वसी इंतजामात का दिली दिल में कायल हो गया, जिन्होंने यहाँ खुफिया तौर पर हर किस्म का इंतजाम किया हुआ था। हेलो, नंबर 6 स्पीकिंग। ब्लेक जीरो के कान में सफेद फार्म की आवाज आई। तमाम स्पेशल मेंबर्स को इत्तला कर दो कि आज रात कबीले का जश्न खास होना है, जिसमें बॉस और मेगाना भी शामिल हो रही हैं। तमाम मेंबर्स इस जश्न में शिरकत करेंगे, नंबर 6 कह रहा था। ठीक आधी रात के बाद जश्न होगा, नोट कर लो। नंबर 6 ने दूसरी तरफ से जवाब देने के बाद कहा और फिर ब्लेक जीरो को रिसीवर रखने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लेक जीरो समझ गया कि ये जश्न खास क्या होगा। इस वक्त मौका अच्छा था, चुनाचे उसने मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। दूसरे लम्हे उसने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर किया और फिर एक जोरदार वार नंबर 6 की खोपड़ी पर कर दिया। रिवॉल्वर का दस्ता खासी कुव्वत से पड़ा था कि नंबर 6 ओह की हल्की सी आवाज़ निकालता वहीं सोफे पर ढेर हो गया। ब्लेक जीरो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले तो दरवाजे की तरफ लपका। उसने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अब उसने इत्मीनान से कमरे पर नजरें डाली। दाएं तरफ दीवार में एक और दरवाज़ा नजर आ रहा था।
वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ लपका और उसे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि ये बाथरूम था। उसे दरअसल मेकअप करने के लिए आईने की जरूरत थी और बाथरूम में आईना मौजूद था। अब वो नंबर 6 की तरफ बढ़ा। वो बेहोश था। ब्लैक जीरो ने उसे कांधे पर उठाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में बेहोश नंबर 6 को लिटाकर उसने कोट के अंदर की जेब से एक छोटा सा मेकअप बॉक्स निकाला। ये छोटा सा बॉक्स था, इसमें इमरजेंसी मेकअप के लिए हर किस्म का सामान था। ब्लैक जीरो ने अपना पहले वाला मेकअप साफ किया और फिर उसने बड़ी तेजी से नंबर 6 का मेकअप करना शुरू कर दिया। जल्द ही वो मुकम्मल तौर पर नंबर 6 का रूप धार चुका था। इसका कदो कामत भी नंबर 6 से बेहद मुशाबे था, इसलिए नंबर 6 के कपड़े उसके जिस्म पर फिट आ गए। अब बाथरूम में 2 नंबर 6 मौजूद थे। ब्लैक जीरो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने नंबर 6 पर नशारा वाला मेकअप करना शुरू कर दिया और अपने कपड़े उसे पहना दिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद सूरत हाल बदल चुकी थी। ब्लैक जीरो अब नंबर 6 का रूप धार चुका था और बेहोश नंबर 6 नशारा की शक्ल में तब्दील हो चुका था। इससे फारिग होने के बाद उसने एक दफ़ा नंबर 6 की नब्ज चेक की। अभी उसके होश में आने के कोई आसार मालूम नहीं हो रहे थे। अब वो सोच रहा था कि उसका क्या करे। फिर उसने उससे छुटकारा हासिल करने का ही सोचा, क्योंकि होश में आने के बाद मामला गड़बड़ हो सकता था। चुनाचे उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उस पर साइलेंसर फिट करने लगा। साइलेंसर फिट करने के बाद उसने नंबर 6 की कनपट्टी के साथ नाली लगाई और ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी खटक हुई और नंबर 6 की खोपड़ी पाट पाट हो गई। वो गरीब तड़प भी ना सका। जब खून निकलना बंद हो गया तो उसने नंबर 6 को घसीटकर एक तरफ किया, उसकी खोपड़ी के रेजे साफ करके फ्लैश गटर में डाले और फिर उसे उठाकर बड़े कमरे में ले आया। कमरे के दरवाजे के करीब उसे लिटाकर उसने दरवाजे की खिड़की खोली और फिर बाहर झाँकने लगा। राहदारी सुनसान थी। दूसरे लम्हे उसने एक बार फिर नंबर 6 की लाश उठाई और उसे लेकर राहदारी में निकल आया। अपने कमरे के दरवाजे से काफी दूर उसने एक कमरे के दरवाजे के आगे उसे डाला और वापस मुड़ गया। उसने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि उस पर किसी की नजर ना पड़े। अब वो अपने कमरे में था। खून वगैरह के तमाम आसार साफ करने के बाद इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया और आइंदा के मुतालिक सोचने लगा। जंगल में फायरिंग के बाद जैसे ही वहशी फरार होने लगे, जोसेफ खामोशी से पीछे खिसक गया। वो जानता था कि वहशी दोबारा उन पर हमला करेंगे और ग्रुप के साथ रहकर वो आज़ादी से काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अकेले रहकर हाथ पैर मारने का इरादा कर लिया। चुनाचे वो खामोशी से पीछे हटता चला गया। जल्द ही वो ग्रुप से काफी दूर निकल आया था। फिर उसने तेजी से अनकाना कबाइल की शहर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो बड़ी एहतियात से अपना सफर कर रहा था कि अचानक वो ठिठक एक कद आदम झाड़ी के पीछे रुक गया। वेशियों का ग्रुप उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो नेज़े उठाए खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। जोसेफ ने उनमें से एक कवि हेकल वेशी को निगाह में रख लिया, जो अपने जिस्म को शेर की खाल में छुपाए हुए था। वो अच्छी तरह जानता था कि शेर की खाल सिर्फ सरदार और उसके नजदीकी लवारिसी पहन सकते हैं। ये जाहिर है कि शेर की खाल पहने हुए कवि हेकल वेशी जरूर सरदार का अजीज ही होगा। अगर वो सरदार होता तो जरूर उसके सर पर ताज होता। जब गुरु उससे करीब से गुजरा तो शेर की खाल पहना हुआ आदमी कचरे पीछे था। फिर जैसे ही वो करीब से गुजरने लगा, जोसेफ ने अचानक उसकी टांग खींच ली। बेख्याली में वो वहशी झाड़ी में आ गिरा और फिर उसे जोसेफ ने छाप लिया। उसने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर हाथ रखा था। गुरु इस दौरान आगे निकल चुका था। चंद लम्हों तक तो वो वहशी समझ ही ना सका कि उसके साथ क्या सीन हुआ है, इसलिए वो हैरत से गुम रहा। मगर जैसे ही उसको होश आया, पूरी कुव्वत से उछला और जोसेफ जो उस पर सवार था उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। वहशी दियो जैसी ताकत का मालिक था, मगर जोसेफ उससे ज्यादा फुर्तीला था। इससे पहले कि वो उठता, जोसेफ इस तरह उछलकर खड़ा हो गया जैसे वो इस पिंजरों पर गिरा हो, और फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन को नाली की तरफ से पकड़कर बर्फ रफ्तारी से घुमाते हुए उठते हुए वहशी के सर पर पूरी कुव्वत से मशीन गन का बट मार दिया। एक पटाख की आवाज आई और उठता हुआ वहशी वहीं ढेर हो गया। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। जोसेफ ने उस पर बस नहीं किया, बल्कि लगातार 2-3 वार कर दिए। 3 वारों में उस वहशी की खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम हो गई और बेहिस्सो हरकत झाड़ी में पड़ा था। जोसेफ ने इत्मीनान का सांस लिया। वैसे उसने फुर्ती और ज़हानत से काम लिया था। उसने वहशी को उठने का मौका ही नहीं दिया था, वरना वहशी ताकत में उससे कम नहीं था
और इतना जोसेफ भी जानता था कि वहाँ फायरिंग करने का मौका नहीं था। चुनाचे उसने ये दाव खेला और वो अपने इस दाव में कामयाब भी रहा था। वेशी जैसे ही खत्म हुआ, जोसेफ ने उसके जिस्म पर शेर की खाल उतार दी और फिर अपने कपड़े उतारकर एक झाड़ी के नीचे फेंक दिए। सिर्फ बूट शर्ट उसने पहन रखी थी, क्योंकि वो शेर की खाल पहनने से नजर नहीं आती थी। ऊपर से शेर की खाल से बना हुआ लिबास पहन लिया। फिर उसने शर्ट की जेबों में हाथ डालकर पैंट की जेबों का सामान मुस्तकिल कर दिया और फिर उसने मशीन गन अंदर पेटी के जरिए कर दी और वेशी का नेज़ा हाथ में ले लिया। नेज़े के 2-3 वार करके उसने वेशी के चेहरे को इस हद तक जख्मी कर दिया कि वो पहचाना नहीं जा सकता था। और वैसे भी वो जानता था कि अगर 2-3 घंटे तक किसी की नज़र लाश पर ना पड़ी तो फिर यहाँ वेशी के जिस्म की बजाय हड्डियाँ ही नजर आएंगी। अब हाथ में नेज़ा लेकर वो आगे बढ़ने लगा। अब नजदीक से भी देखकर कोई उसे पहचान ना सकता था कि ये किसी मस्जिद मुल्क का रहने वाला है। वो नेज़ा हिलाता हुआ आगे बढ़ता रहा। जूते वो पहले ही उतार कर फेंक चुका था, इसलिए इस जंगल में नंगे पैर चलने से शुरू में तकलीफ तो हुई, मगर एक फरलांग चलने के बाद वो ठीक हो गया। फिर जल्द ही उसे दूर से अनकाना बस्ती की झोंपड़ियां नजर आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि बस्ती के अंदर चला जाए, मगर फिर कुछ सोचकर वो बस्ती के करीब खुले मैदान के किनारे एक बड़े से घने दरख्त पर चढ़ता चला गया। वो चाहता था कि यहाँ के हालात देखकर बस्ती में दाखिल हो और उसके लिए अच्छी तरह अंधेरा होने का इंतजार जरूरी समझा। घने दरख्त में वो इस तरह छुप कर बैठ गया कि उसे बाहर से नहीं देखा जा सकता था। अभी उसे वहाँ बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि सफदर और उसके साथी एन उसी वक्त उस दरख्त के नीचे से गुजरे जिसके ऊपर जोसेफ छुपा बैठा था। सफदर और उसके साथी नहाते थे। उनका तमाम सामान वेशियों के कबीले में था। उनके वहाँ पहुँचते ही तमाम बस्ती के अफराद उनके गिरद जमा हो गए। फिर बस्ती के अफराद के गुस्से में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी जोसेफ अच्छी तरह सुनता रहा। बस्ती के लोगों को अपने साथियों के मारे जाने का बेहद गुस्सा था और वो लोग चाहते थे कि सफदर और उनके साथियों को कत्ल करके इंतकाम की आग बुझाए, मगर सरदार उन्हें समझा रहा था कि इस तरह देवी उनसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि देवी ने उन्हें भीड़ चढ़ाने का हुक्म दिया है। देवी का ये हुक्म सुनकर जोसेफ बेहद फिक्रमंद हो गया, क्योंकि वो उनकी भीड़ चढ़ाने की रस्मों को अच्छी तरह जानता था कि वो कितनी खतरनाक होती हैं। बहरहाल पूरी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए खामोश बैठा रहा। वैसे उसने मशीन गन निकालकर हाथ में पकड़ ली कि अगर वेशियों ने अपने सरदार का हुक्म ना माना और किसी थोड़ी कार्रवाई पर तुल गए तो वो उन पर यहीं से आग बरसा देगा। मगर फिर उसने देखा कि सरदार के कहने पर वो सब लोग वापस झोंपड़ियों की तरफ चले गए और आहिस्ता आहिस्ता मैदान खाली हो गया। सफदर और उनके साथी एक झोंपड़ी में ले जाकर बंद कर दिए गए। मैदान खाली होने तक सरदार वहीं रुका रहा। फिर वो एक तरफ चलता हुआ जंगल में गायब हो गया। जोसेफ वहीं दरख्त पर बैठा था। काफी देर बाद जोसेफ बड़ी खामोशी से नीचे उतरा और बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। पहला वेशी जो उसके करीब से गुजरा उसने उसे देखते ही झुककर सलाम किया, मगर जोसेफ आगे बढ़ता चला गया। जल्द ही वो शाही झोंपड़ी के पास पहुंच गया। शाही झोंपड़ी के बाहर मौजूद वेशियों ने नेज़े उठाए रखे थे, शायद पहरा दे रहे थे। जोसेफ को देखकर अदब से सर झुका दिए और जोसेफ खामोशी से झोंपड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस झोंपड़ी में नहीं आना चाहिए था। ये झोंपड़ी एक पूरे मकान जितनी वसी थी, मगर ये तमाम एक ही कमरे पर मुश्तमिल थी। इस तरह के वो एक वसी हॉल जैसी सूरत इख्तियार कर गया था। जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ, झोंपड़ी के मुख्तलिफ कोनों में मौजूद वेशी औरतें उठकर उसकी तरफ बढ़ीं। ये सरदार की बीवियां थीं जो हैरत से जोसेफ को देख रही थीं। उन्हें शायद जोसेफ की वहाँ मौजूदगी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनके चेहरों पर हैरत के आसार नुमाया थे। मगर फिर जैसे ही वो करीब आई, उनमें से एक चीख पड़ी, ये जलाल तो नहीं कोई और है। अब जोसेफ को पता चला कि जिस हबशी का उसने लिबास पहना हुआ है उसका नाम जलाल था। वो जानता था कि शाही खानदान के लोग अपने दुआओं के मुताबिक जिस्म पर खाले पहनते थे। शेर की खान का मतलब है कि जलाल सरदार का कोई इंतहाई करीबी अजीज होगा। तुम कौन हो? एक लड़की चीखी। जलाल। जोसेफ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उसे अपने आप पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि वो बगैर सोचे समझे शाही झोंपड़े में क्यों घुसा। मगर तुम्हारी शक्ल जलाल से नहीं मिलती, दूसरी लड़की बोली। नहीं, मैं जलाल हूँ, दोगा कहाँ है? उसने पूछा।
ये तो उसे दारुल हुकूमत में ही मूसी और गाशी से पता चल चुका था कि अनकाना कबीले का मौजूदा सरदार का नाम डोगा है। हमें क्या मालूम, क्या सरदार हमें बताकर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है? एक लड़की ने बड़े नखरे से जवाब दिया और दूसरे लम्हे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज झोंपड़ी में गूंज उठी। जोसेफ से लड़की का ये नखरा बर्दाश्त नहीं हो सका था। चुनाचे झिझलाकर उसने पूरी कुव्वत से लड़की के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का रद्द-ए-अमल बड़ा खिलाफ तवक्को था। थप्पड़ पड़ते ही सब औरतें जो बड़ी मासूमियत से जोसेफ को देख रही थी यकदम यूं दुबक गई जैसे वो शेर के पंजे में आ गई हों। वो सब तेजी से वापस झोंपड़ी के कोने में बढ़ गईं। जोसेफ के लिए ये रद्द-ए-अमल खिलाफ तवक्को था। चंद लम्हे वो खड़ा सोचता रहा, फिर वो वापस मुड़ गया। झोंपड़ी से बाहर निकलकर वो तेज तेज चलता हुआ सफदर वाली झोंपड़ी की तरफ बढ़ा कि एक औरत उसके बाजू में लटक गई। मेरे जलाल, क्या तुम मेरी झोंपड़ी में नहीं आओगे? ये शायद जलाल की कोई चहेती बीवी थी जो अंधेरे में उसे जलाल ही समझ रही थी। जोसेफ इस अचानक अफसार से घबरा गया। उसने पूरी कुव्वत से बाजू को झटका दिया। औरत भूल जा गई मगर फिर फौरन ही उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर खौफ था। सामने ही झोंपड़ी का दरवाजा था। जोसेफ को एक लम्हे में ख्याल आ गया कि फिलहाल ये खाली झोंपड़ी अच्छी पनाह साबित हो सकती है। चुनाचे वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे झोंपड़ी की तरफ बढ़ते देखकर औरत के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई और फिर वो उसके पीछे झोंपड़ी में आ गई। औरत ने अंदर दाखिल होते ही झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जोसेफ झोंपड़ी के कोने में पहुंच चुका था। दरवाजा बंद करके औरत तेजी से जोसेफ की तरफ बढ़ी। झोंपड़ी में एक मशल जल रही थी। उसकी रोशनी काफी तेज थी। फिर जैसे ही औरत जोसेफ के करीब पहुंची उसे जोसेफ की असल शक्ल नजर आ गई तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो चीखती, जोसेफ ने लपक कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो समझ गया था कि औरत पहचान चुकी है कि ये हैरत ज़दा हो गई है। जोसेफ का हाथ बड़ी तेजी से उसके मुंह पर जमा हुआ था। औरत ने अपना मुंह छुड़ाने की बेहद कोशिश की मगर जोसेफ की गिरफ्त और मजबूत होती चली गई। चंद लम्हों बाद वो औरत जोसेफ के हाथों में झूल गई। सांस बंद हो जाने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। जोसेफ ने उसे इस तरह झोंपड़ी के कोने में फेंक दिया जैसे मुर्दा छिपकली को फेंका जाता है। अब वो इत्मीनान से झोंपड़ी के कोने में बिछे हुए घास पर बैठ गया। अब वो पूरी तौर पर महफूज जगह पर पहुंच चुका था, इसलिए इत्मीनान से बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे इल्म नहीं था कि इमरान वगैरह गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं। अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो वो किस झोंपड़ी में है। आखिर उसने यही फैसला किया कि इस औरत के होश में आ जाने पर उससे वो तमाम तफसीलात पूछ लेगा। रात को मैदान के करीब पड़ा हुआ ढोल बड़े जोर जोर से बजाया जाने लगा। ढोल बजते ही बस्ती के तमाम अफराद अपनी झोंपड़ियों से उछलते कूदते बाहर निकल आए। अब सबका रुख उसी मैदान की तरफ था। मैदान के दरमियान लकड़ियों का एक ढेर था जिसे आग लगा दी गई, जिससे दूर दूर तक रोशनी फैल गई। फिर सब लोग मैदान में इकट्ठे होने लगे। वो सब बुरी तरह उछल कूद रहे थे। उनके चेहरों पर बेपनाह खुशियां रक्स कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती इस मैदान में इकट्ठी हो गई। ढोल अब भी बड़े शोर और गौर से बज रहा था। फिर इमरान वाली झोंपड़ी का दरवाजा खुला और 4 वहशी नेज़े-ताने अंदर दाखिल हुए। बाहर चलो, उन्होंने इमरान और उसके साथियों पर नेज़े-तान लिए। चलो भाई, मगर ये बताओ कहीं तुम मेरी शादी का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे हो जो ये ढोल वगैरह बजा रहे हो? इमरान ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया और वहशियों के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रह गई मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई पहले मुझे दुल्हन दिखा देना, इमरान ने झोंपड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। इमरान के साथी भी बाहर आ गए। उनका चौथा एक वहशी ने हैरत से दूसरे से कुछ कहना चाहा मगर इमरान ने दरमियान में ही बात उचक ली। वो हमारा चौथा आदमी, वो तो एक रूह थी जो चली गई। इमरान ने जानबूझकर खौफनाक लहजा बनाते हुए कहा। रूह? वहशियों के चेहरों पर तज़ब्ज़ुब के आसार थे। हाँ, वो सरकुंडों के ऊपर रक्स करने वाली गंडाला देवता की रूह थी। इमरान ने टुक जोड़ी। गंडाला देवता की रूह? वहशियों के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। अब वो चलते चलते मैदान के करीब पहुंच गए थे। उनको आता देखकर तमाम वहशी और भी ज्यादा शोर मचाने लगे। इन चारों वहशियों ने उनके गिर्द हिसार बांध लिया और फिर वो उन्हें लेकर मैदान में पहुंच गए। इमरान ने उन्हें वाकई बातों में इस तरह उलझाया था कि ब्लेक जियो की गुमशुदगी पर वो ज्यादा गौर न कर सके और ये बातें करने से उसका मकसद ही यही था। उन्हें मैदान में गड़े हुए दरख्तों के तनों से अच्छी तरह बांध दिया गया।
इमरान ने देखा कि सफदर और उसका ग्रुप भी पहले से वहीं मौजूद था। जोसेफ गायब था। इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि उसे जोसेफ से पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर कोई कारनामा दिखाएगा। उनके वहां पहुंचते ही ढोल और ज्यादा जोर और शोर से बजने लगे और वहशियों की उछल कूद में शिद्दत आ गई थी। जहां इमरान वगैरह को बांधा गया था, वहां सामने एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया था, जिसके गिर्द कवि हैकल वहशी नेजा ताने पहरा दे रहे थे। फिर वहशियों की पार्टियां, औरतें, मर्द मैदान में आकर नाचने लगी। उनका रक्स भी अपनी तरह वहशियाना था। रक्स उरूज पर आता चला गया। फिर यकदम ढोल की ले बदल गई। ले बदलते ही रक्स करते हुए वहशी यकदम यूं साकत हो गए जैसे उन्हें मौत ने सूंघ लिया हो। अब माहौल पर एक पुरस्कार सा सकूत तारी हो गया, जिसे ढोल की होलनाक ले और भी ज्यादा पुरस्कार बना रही थी। फिर चबूतरे के करीब मौजूद वहशी खौफजदा अंदाज में पड़े हटते चले गए और इमरान वगैरह ने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सफेद फाम लड़की सफेद रंग का लिबास पहने खरामा खरामा चली आ रही है। उसके चेहरे से तेज रोशनी निकल रही थी और सर पर एक पुरस्कार रोशनी का हाला चमक रहा था। इमरान समझ गया कि चेहरे पर जो मेकअप किया गया है उसमें फास्ट फोर्स की खासी मिकदार शामिल की गई है और सर पर मौजूद हाला बैटरी का एक मामूली सा शोभा था, मगर वहशियों के लिए यही बहुत कुछ था। चुनाचे जैसे ही वो लड़की करीब आई, तमाम वहशी सजदे में गिर गए। अलबत्ता ढोल अब भी बज रहा था। हम अनकाना देवी की पसंदीदगी चाहते हैं। वहशी सजदे में पड़े गिड़गिड़ा रहे थे। अनकाना देवी के साथ तकरीबन 12 सफेद फाम थे, जो उसके पीछे गुलामों की तरह हाथ बांधे चल रहे थे। देवी अटलाती हुई इस चबूतरे के करीब पहुंची और फिर वो चबूतरे पर चढ़कर खड़ी हो गई। सफेद फाम भी उस वसी चबूतरे पर चढ़कर उसके पीछे खड़े हो गए। उनके हाथ सीनों पर बंधे हुए थे और उन्होंने सर झुका रखे थे। उठो मेरे पुजारियों, मैं तुम पर अपनी रहमतों का साया करूंगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, देवी ने जोर से कहा और उसकी आवाज़ तमाम मैदान में गूंज गई। शायद किसी सीक्रेट माइक्रोफोन सिस्टम से उसकी आवाज़ मैदान में गूंजने का इंतजाम किया गया था। वहशी उठ खड़े हुए और फिर वो सब देवी के इस वादे पर खुशी से चीखने लगे। वहशियों का सरदार एक तरफ से आगे बढ़ा और फिर चबूतरे के सामने आकर सजदे में गिर गया। उठो लोगा, मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, देवी ने एक बार फिर कहा और सरदार, जिसका नाम डोगा था, उठकर खड़ा हो गया। उसने अब भी हाथ बांध रखे थे। देवी, हमारी भेंट कबूल करो, उसने चीख कर कहा। हाँ, मैं तुम्हारी भेंट कबूल करती हूँ, देवी ने जवाब दिया और फिर पूरा मैदान खुशी के नारों से गूंज उठा। सरदार खुद खुशी से रक्स कर रहा था। देवी ने हाथ उठाया और रक्स थम गया। वो खुद चबूतरे पर बैठ गई। सफेद फामली बैठ गए। जश्न शुरू किया जाए, देवी ने हुक्म दिया और उसका हुक्म मिलते ही मैदान में 2 वहशी कूद पड़े। उनके हाथों में नेज़े थे और फिर उन्होंने एक दूसरे पर नेज़ों के वार करने शुरू कर दिए। काफी देर तक उनके दाव पेश होते रहे। अचानक एक वहशी का दाव चल गया और दूसरे लम्हे मैदान एक भयानक चीज से गूंज उठा। दूसरे लम्हे वहशी के पेट में नेज़ा घुस चुका था। वो वहीं ढेर हो गया। पहले वहशी ने उसके सीने पर पांव रखा और फिर पूरी कुव्वत से नेज़ा उसके जिस्म से खींच लिया। उसका नेज़ा बाहर निकलते ही मैदान खुशी के नारों से गूंज उठा। नेज़े का सिरा लहू से तर था। दूसरे लम्हे उसने झुककर एक बार फिर नेज़ा जख्मी वहशी के सीने में तराजू कर दिया। इस बार नेज़े का सिरा शायद दिल को चीर गया था, क्योंकि तड़पता हुआ वहशी साकित हो चुका था। फातिहा वहशी ने नेज़ा हाथ से बाहर निकाला और फिर उसमें से टपकने वाला लहू चाटने लगा। वो बुरी तरह उछल कूद कर रहा था। खून चाटते ही चंद वहशी भागते हुए आए। उनके हाथों में बड़े बड़े खंडे थे। उन्होंने सेकंडों में मुर्दा वहशी के जिस्म के टुकड़े किए और उनका एक टुकड़ा सरदार के सामने पेश कर दिया। सरदार नंजीरों की तरह वहशी का कच्चा गोश्त खाने लगा। बाकी हिस्से भी शाही खानदान के अफराद में बांट दिए गए और वो इस बुरी तरह मुर्दा वहशी का गोश्त खाने लगे जैसे बड़ी मिद्दत के बाद उन्हें ये नेमत मुयसर आई हो। जल्द ही वहशी की हड्डियां अलाव में फेंक दी गईं। फातिहा वहशी अभी तक मैदान में रक्स कर रहा था। देवी ने एक बार फिर हाथ उठाया और वो भागता हुआ चबूतरे के करीब पहुंचा और वहां जाकर सजदे में गिर गया। देवी ने हाथ नीचे कर लिए। वहशी उठकर चबूतरे की एक तरफ बैठ गया। देवी ने एक बार फिर हाथ उठाया और फिर उसने हाथ को वापस लाते हुए इमरान की तरफ इशारा किया। तकरीबन 10 के करीब वहशी भागते हुए इमरान के करीब पहुंचे और फिर उसे खोल दिया। इमरान के साथियों के रंग फाक हो गए। उन्हें इमरान की मौत का मुकम्मल यकीन हो गया।
मगर इमरान बड़े इत्मीनान से चलता हुआ मैदान के दरमियान आ गया। उसे मैदान के दरमियान में छोड़कर वेशी पीछे हट गए। देवी ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर हाथ ऊंचा करना चाहा, मगर ठहरो, पहले मेरी बात सुन लो। मैं ढम देवता हूँ, तुम सब पर दवाइयाँ नाजिल कर दूंगा। तुम कुत्तों की तरह चीखोगे और उल्लुओं की तरह वीरानों में भागोगे, मगर मेरी भेजी हुई दवाई से नहीं बच सकोगे। मेरी बात सुनो। इमरान जोर से चीखा और देवी का उठा हुआ हाथ दोबारा नीचे गिर गया। वो गुस्से के आलम में उठ खड़ी हुई। तुम झूठ बोलते हो, तुम देवता नहीं। मेरे पुजारियों, अगर तुमने इसकी भेंट ना दी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। देवी गुस्से से चीख रही थी। खामोश हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी देवी हो। अगर तुम्हें मेरे देवता होने पर शक है तो मेरा मुकाबला करो। क्यों अपने पुजारियों को मरवाती हो? इमरान जवाब में और भी ज्यादा जोर से दहाड़ा। तमाम मुजमे को सांप सूंघ गया। अब मुकाबला देवी और देवता का बराह रास्त हो गया था, इसलिए वो खामोश हो गए थे। फिर सरदार आगे बढ़ा। तुम्हारे पास देवता होने का क्या सबूत है? उसने गुस्से से चीखते हुए पूछा। सबूत दूं? इमरान ने गजबनाक लहजे में कहा। उसका लहजा इतना खौफनाक था कि एक बार तो वेशी सरदार भी पूरी जान से कांप गया। हाँ, सबूत दो, उसने जुर्रात करते हुए कहा। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें सबूत देता हूँ कि मैं देवता हूँ या नहीं। इमरान ने सरदार से मुखातिब होते हुए कहा। ठहरो, देवी ने सरदार को रोक दिया। तुम क्या करना चाहते हो? उसने इमरान से पूछा। उसके लहजे में उलझन नुमाया थी। सरदार को सबूत देना चाहता हूँ, इमरान ने कहा, जो अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा था। अपना एक हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। दूसरे लम्हे सामने खड़ा हुआ सरदार बेहाना चीख मारता हुआ उलट गया। वो बुरी तरह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और इमरान के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट रेंग रही थी। चंद लम्हे बाद सरदार साकित हो गया। पूरे मजमे की हैरत और खौफ से चीखें निकल गईं। इमरान के साथी भी हैरान थे कि इमरान ने ये क्या हरकत की। इमरान ने दरअसल ब्लू पाइप की तरह एक छोटे से पिस्टल से सरदार के जिस्म में साइड एंड राइट में डूबी हुई सुई मारी थी। ब्लू पाइप पिस्टल इतना छोटा था कि इमरान के हाथ में ही छुप गया था। इमरान ने फुर्ती से हाथ दोबारा जेब में डाल लिया था। देवी के चेहरे पर भी ये सौदा देखकर हैरत के आसार तारी हो गए। और किसी को सबूत चाहिए? इमरान ने बड़े ड्रामाई अंदाज में फंकारते हुए कहा, और सारे मुजमे पर मौत की खामोशी तारी हो गई। सरदार का हशर देखकर किसी को आगे बढ़ने की जुर्रात ना हुई। अचानक देवी के पीछे बैठा हुआ सफेद पाम उठ खड़ा हुआ। वो जोर जोर से चीख रहा था। ओ देवी के पुजारियों, ये तुम्हारे सामने तुम्हारी देवी की तौहीन कर रहा है। तुम्हारे सरदार को मार डाला है और तुम खामोश खड़े हो। इस पर टूट पड़ो और इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इसके साथियों को खिला दो, ताकि देवी तुमसे खुश हो जाए। आगे बढ़ो, ये देवता नहीं, एक मामूली आदमी है, इस पर टूट पड़ो। वो गुस्से से चीख रहा था। वेशियों में हलचल मच गई। शायद उन्हें गैरत आ गई थी। इससे पहले कि वो बढ़कर इमरान पर हमला करते, अचानक चबूतरे के करीब एक तवील कामत और देवोजात जिस्म का मालिक वेशी, जिसने सारे जिस्म पर शेर की खाल पहन रखी थी, मैदान में दाखिल हो गया। शेर का सर उसने आधे के करीब मुंह पर डाल रखा था, इसलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था। मैं जलाल डोगा का भाई हूँ, डोगा की मौत के बाद इस कबीले का सरदार हूँ। क्या तुम लोग मुझे सरदार मानते हो? उसने चीख कर कहा। ठहरो, तुम बगैर देवी की मर्जी के सरदार नहीं बन सकते। देवी के सफेद पाम गुलाम ने चीख कर कहा। इमरान आवाज से पहचान लिया था कि ये जोसेफ है। उसे खुशी हुई थी कि जोसेफ ने ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। अगर जोसेफ सरदार बन जाए तो वो इस वहशी कबीले को आराम कर सकता है। ठीक है, मैं देवी से सवाल करता हूँ कि वो मुझे सरदार तस्लीम करे। जोसेफ ने बड़े नरम लहजे में देवी से मुखातिब होकर कहा। ठहरो, मैं तुम्हें इस वक्त तक सरदार तस्लीम नहीं करूंगी जब तक तुम इस आदमी का गोश्त काटकर उसके साथियों को नहीं खिलाओगे। देवी ने पुरस्कार लहजे में जवाब दिया। उसने मौके से फायदा उठाया था। अब जोसेफ कश्मकश में मुब्तला था कि क्या करे और क्या ना करे। ये तमाम मजमा शोर मचाने लगा। हम जलार को उस वक्त सरदार तस्लीम करेंगे जब वो देवी की शर्त पूरी करेगा। इमरान भी वाक़ियात की अचानक तब्दील पर कश्मकश में मुब्तला हो गया। अब मुकाबले में जोसेफ था। अब अगर वो मुकाबला करे तो जोसेफ मरता है और ना करे तो उसकी जिंदगी जाती है। अजीब उलझन पड़ गई थी। क्यों खामोश हो गए हो? आगे बढ़कर उस आदमी से मुकाबला करो और उसका गोश्त काटकर उसके साथियों को खिला दो। तुम सरदार हो जाओगे। देवी ने तंजिया लहजे में कहा। मगर ये आदमी अपने आप को देवता कहता है और देवता से मुकाबला देवी को करना चाहिए। जोसेफ ने भिंगारते हुए कहा।
नहीं, ये आम आदमी है, देवता नहीं, और इसका मुकाबला करना देवी की तौहीन है। अगर ये तुमसे जीत गया तो मैं उसे यहीं खड़े खड़े भस्म कर दूंगी, मेरा वादा है, देवी ने जवाब दिया। जोसेफ, तुम मुझसे बात करो कि ये अगर बाद में हमें छोड़ दें और तुम्हारी मर्जी पर चलने दें तो ठीक है, तुम मेरी जान का थोड़ा सा गोश्त काटकर बाकी साथियों को खिला दो। इमरान ने दबे लहजे में उर्दू में जोसेफ से कहा, और उसके सिवा अब चारा भी क्या था। इमरान के सामने अपना अजीम मकसद था, जिसके लिए वो अफ्रीका के इस जंगल में आया था। मुल्क की इज्जत और सालियत का सवाल था। उसके लिए तो उसकी जिस्म का एक एक बोटी भी काम आ जाती, तो वो ऐसा करने से कभी जिरेक ना करता। यहाँ तो थोड़े से गोश्त का सवाल था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जोसेफ ने भी उर्दू में जवाब दिया। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो इमरान का गोश्त काटेगा। जल्दी जवाब दो वरना पीछे हट जाओ, देवी ने चीख कर जोसेफ से कहा। मान जाओ जोसेफ, इसमें हम सबकी जिंदगी और मुल्क की अजमत का सवाल है, इमरान ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं इस आदमी से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी चंद शराइत हैं, जोसेफ ने इमरान की जिद पर देवी को जवाब दिया। क्या शराइत हैं, बोलो, देवी ने गुस्से से झंझाते हुए कहा। इसे पहली बार इस तरह के हालात से निपटना पड़ रहा था, वरना इससे पहले तो उससे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कबीले वालों के लिए खुदाई फरमान का दर्जा रखता था। अगर मैं इस देवता से मुकाबला करूं और जीत जाऊं, तो फिर ये देवता और उनके मुतालिक मैं जो भी फैसला करूं, तमाम कबीले वाले और देवी को इस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा। जोसेफ ने पहली शर्त पेश की। मुझे मंजूर है और मैं वादा करती हूँ कि अगर तू इस आदमी से जीत गया तो इसके साथ ही तेरे कब्जे में होंगे और उनके मुतालिक फैसला करने का तुझे इख्तियार होगा। देवी के लहजे में मुसर्रत थी, क्योंकि वो इमरान को ख़त्म करना चाहती थी। बाकी लोगों से उसे इतना खौफ नहीं था। दूसरे नंबर पर यह कि मुझे कबीले का सरदार तस्लीम कर लिया जाएगा, जोसेफ ने कहा। मंजूर है, देवी ने जवाब दिया। हाँ मंजूर है, हमें देवी का फैसला मंजूर है, तमाम वहशियों ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, मैं इस देवता का मुकाबला करता हूँ, जोसेफ ने चिल्लाकर कहा और फिर नेज़ा तानकर इमरान की तरफ बढ़ा। तमाम मुजमा साकित हो गया। वो बड़ी दिलचस्पी से जोसेफ और इमरान को देख रहे थे। इमरान के साथी खंभों के साथ बंधे हुए बड़ी परेशानी से ये मंजर देख रहे थे। उनके दिल धड़क रहे थे कि न जाने अब क्या हो, क्योंकि जोसेफ की आवाज़ बदली हुई थी, इसलिए वो जोसेफ को नहीं पहचान सके थे। ये अजीब व गरीब मुकाबला था जोसेफ और इमरान के दरमियान। जोसेफ जब इमरान के करीब आया तो इमरान ने देख लिया कि जोसेफ अपनी असली शक्ल में है, और ये एक इंतहाई खतरनाक बात है। अगर जोसेफ सरदार भी बन जाता तो बाद में पहचान लिए जाने पर मामला दोबारा खराब हो जाता। इससे निपटने के लिए इमरान ने जहन में फौरन ही एक स्कीम सोच ली। रुक जाओ, तुम मेरे करीब मत आओ, मैं फूंक मारकर तुम्हारी शक्ल तब्दील कर दूंगा, इमरान ने चीख कर कहा। तुम कुछ करो, बहरहाल मैं सरदार बनने के लिए हर शर्त पूरी करूंगा। जोसेफ जवाबन इमरान से भी ज़्यादा ऊंचे लहजे में बोला। तो फिर लो, आज के बाद तुम अपनी असली शक्ल में नहीं रहोगे, इमरान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। फिर इमरान ने उछलकर एक जोरदार नारा मारा और दूसरे लम्हे उसने अपना हाथ जोसेफ के चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसे रेशा ज़दा अफराद की तरह हिलाना शुरू किया। जोसेफ इमरान की स्थिति समझ चुका था, इसलिए जैसे ही इमरान ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, वो एक जोरदार चीख मारकर उलट गया, लेकिन जमीन पर गिरते ही तड़प उठा। हा हा हा, इमरान ने एक भयानक केका मारा। तुम पर मेरा अताब नाजिल हो चुका है, तुम्हारी शक्ल तब्दील हो गई है। हा हा हा, इमरान दीवानों की तरह केके मार रहा था और जोसेफ ने भौंकलाकर अपने चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वो लाजवाब अदाकारी कर रहा था। ज़लार, हमारे करीब आओ, अचानक देवी ने चीखकर जोसेफ को हुक्म दिया और जोसेफ पलटकर देवी के करीब पहुंच गया। उसने मुंह के आगे से शेर का सर उठाया तो देवी तो एक तरफ रही, बाकी लोग भी चौंक पड़े, क्योंकि अब वो ज़लार का नहीं जोसेफ का चेहरा था। ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, देवी के पीछे बैठे हुए डाककर ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये कहीं इमरान वगैरह का साथी ना हो, लेकिन फिर उसने ये ख्याल जहन से झटक दिया, क्योंकि पॉइंट 4 पर विजन मशीन पर जब उसने इमरान और उसके साथियों को चेक किया था, उस वक्त उसे जोसेफ की शक्ल नजर नहीं आई थी, क्योंकि जोसेफ उस वक्त झोंपड़ी में पहरा दे रहा था। लेकिन ये मसला किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान ने ज़लार की शक्ल कैसे बदल दी है। बहरहाल इमरान की स्कीम कामयाब हो गई। अब जोसेफ महफूज हो गया था। जाओ, मुकाबला करो, देवी ने उलझन ज़दा लहजे में जोसेफ से कहा और जोसेफ वापस पलट पड़ा। इमरान के साथी जो दूर होने की वजह से इस सूरत हाल पर बेहद परेशान थे, उन्हें इस सिचुएशन पर बहुत हैरत हुई।
अब जोसेफ वापस पलट पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। वो सोच रहा था कि एक मसला तो हल हो गया, मगर ये इमरान के गोश्त काटने वाला मसला कैसे हल होगा। बहरहाल अब तो मजबूरी थी, जबकि खुद इमरान इस बात पर इसरार कर रहा था। वो नेज़ा ताने इमरान की तरफ बढ़ा और इमरान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा उसे देख रहा था। जोसेफ ने करीब आते ही फुर्ती से नेज़ा इमरान की तरफ उछाल दिया। इमरान उछलकर एक तरफ हो गया और नेज़ा उसके जिस्म से चंद इंच के फासलों पर से गुजर गया। अचानक इमरान ने उछलकर जोसेफ पर हमला कर दिया। ये एक खतरनाक फ्लाइंग किक थी, मगर मुकाबले में भी जोसेफ था। चुनाचे वो फुर्ती से एक तरफ हट गया और इमरान उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा, मगर गिरते ही वो इस तरह उछल खड़ा हुआ जैसे वो सिरे से गिरा ही नहीं था। अब दोनों एक दूसरे के मुकाबले में थे। थोड़ी देर मुझसे लड़ो, फिर मैं अपने आप को ढीला छोड़ दूंगा, इमरान ने दबे दबे लहजे में जोसेफ से कहा और जोसेफ के लहजे पर मुस्कुराहट छोड़ गई और दूसरे लम्हे उसने इमरान पर एक दफ़ा फिर हमला कर दिया। इमरान इस दफ़ा अपनी जगह से हिला नहीं बल्कि जमकर खड़ा रहा। जोसेफ जैसे ही इमरान से टकराया, इमरान थोड़ा सा झुका और फिर वो झटका खाकर सीधा हुआ तो जोसेफ जैसा देव हैकल आदमी उसके सर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। मजमे पर एक हैरत अंगेज सकूत छाया हुआ था। लोग बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहे थे। जोसेफ ने उठकर एक बार फिर इमरान पर हमला कर दिया। ये फ्लाइंग किक थी। इमरान ने डोज देने की कोशिश की, मगर जोसेफ की दोनों लातें इमरान के सीने पर जोर से लगी और इमरान उछलकर जमीन पर जा गिरा। फिर जोसेफ ने उठने में फुर्ती दिखाई और फिर उठते हुए इमरान के चेहरे पर लात मार दी, मगर इमरान ने उसकी टांग पकड़कर मरोड़ दी और जोसेफ बल खाता हुआ नीचे गिर पड़ा। फिर इमरान ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी, मगर चंद लम्हों बाद वो उठ खड़ा हुआ और फिर इन दोनों के दरमियान बॉक्सिंग शुरू हो गई। फिर मजमा ये देखकर हैरान रह गया कि जोसेफ ने एक जोरदार मुक्का इमरान के मुंह पर मारा और इमरान को करता हुआ जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। चंद लम्हों बाद वो बेहोश हो चुका था। सारा पिंडाल इमरान को गिरते देखकर जोरदार नारों में गूंज उठा। वेशी अपने होने वाले सरदार की पीठ पर दीवाना वार रक्स करने लगे। फिर देवी के इशारे पर चंद वेशी नेज़ा ताने बेहोश इमरान की तरफ बढ़े, मगर जोसेफ जो एक फाते की तरह बेहोश इमरान के पास उठ खड़ा था, चीख उठा, खबरदार अगर कोई आगे बढ़ा। और उछलते कूदते वेशी जोसेफ की धार सुनकर रुक गए। सरदार मैंने बनना है, ये तमाम काम मैं खुद करूँगा, जोसेफ ने उन्हें डांटते हुए कहा और वो वापस मुड़ गए। जोसेफ वापस मुड़ा और फिर पूर्वकार चाल चलते हुए देवी के करीब जाकर अदब से झुक गया। शाबाश सरदार, हम तुमसे बेहद खुश हैं। अब तुम इसका गोश्त अपने साथियों को खिलाकर शर्त मुकम्मल कर लो। देवी ने जोसेफ को हुक्म दिया और जोसेफ उल्टे कदमों मुड़कर इमरान की तरफ बढ़ाया। ये मरहला बेहद नाजुक था और जोसेफ सोच रहा था कि अब क्या करें। एक बार तो उसका जी चाहा कि नेज़ा उठाकर देवी के सीने में घोंप दे ताकि ना रहे बात ना बचे बांसुरी, मगर फिर वो वहशी कबीले के अफराद से डरता था कि अगर सब मिलकर देवी का इंतजाम लेने पर तुल गए तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इमरान के करीब आया। इमरान बदसूर बेहोश पड़ा हुआ था। वो इमरान के करीब आकर बैठ गया और फिर उसने दबे लहजे में कहा, जैसे वो मंत्र पढ़ रहा हो, बॉस ये तुमने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इमरान ने आंखें बंद रखी और बड़बड़ाते हुए कहा, जोसेफ हिम्मत करो, थोड़ी सी कुर्बानी से अगर हम कबीले को अपने साथ मिला लें तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इमरान ने कहा, मगर बॉस देवी तो तब भी सफ़ेद कामों के हाथ में है, उसका क्या इलाज होगा? जोसेफ ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम तमाम कबीले को अपने साथ मिला लो देवी का इलाज किया जा सकता है। इमरान ने कहा, तो फिर मैं कौन सी जगह का गोश्त काटूं? जोसेफ ने यूं पूछा जैसे उसे ये समझ ना आ रही हो कि वो कौन सी जगह का गोश्त काटे। मेरी बाएं रांग से एक रोटी उतार लो। इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा जैसे वो अपने जिस्म से गोश्त अलहदा करने का हुक्म देने की बजाय किसी और के मुतालिक हुक्म दे रहा हो। अच्छा बॉस, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं सारी उम्र अपने आप पर लानत भेजता रहूँगा, जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने बढ़कर एक तरफ पड़ा हुआ अपना नेज़ा उठाया और फिर दोबारा इमरान की तरफ बढ़ा। सारे पिंडाल पर मौत का सबूत जारी था। इमरान के साथियों की बुरी हालत थी, वो बुरी तरह तसमसा रहे थे। दिल इस तेजी से धड़क रहे थे कि जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएंगे। अभी जोसेफ इमरान के करीब नहीं आया था कि अचानक देवी के पीछे बैठे हुए उसके सफेद पाम गुलामों में से एक देवी से उठ खड़ा हुआ। ठहरो, उसने गरजदार आवाज में जोसेफ से कहा,
اس کی आवाज ने पूरे पंडाल को यूं चौंका दिया जैसे बम का धमाका हुआ हो। बैठ जाओ नंबर 6, तुम क्या चाहते हो? पास बैठे हुए डॉक्टर ने इंतहाई सख्त लहजे में कुछ सफेद पांव से मुखातिब होकर कहा, जिसने जोसेफ को रोक दिया था। बॉस, ये गलत है। इस तरह एक बेहोश आदमी का गोश्त काटना अनकाना कबीले की रिवायात के खिलाफ है। उसने भी जवाबन सख्त लहजे में डॉक्टर से कहा, खामोश हो जाओ, जो हम हुक्म देंगे वही होगा। आगे बैठी हुई देवी ने झंझलाकर नंबर 6 से कहा, लेकिन उसकी आवाज कबीले तक पहुंच गई थी। चुनाचे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देवी का गुलाम ठीक कहता है, मरे हुए का गोश्त काटना हमारी बहादुरी की तौहीन है। अचानक उनमें से एक दो हेगल आदमी ने चीख कर कहा और फिर पूरे मजमे में शोर मच गया। पूरा मजमा दो गुटों में तकसीम हो गया। वो सब एक दूसरे से चीख कर अपना अपना अकीदा वाज़ेह कर रहे थे। खामोश हो जाओ, मेरी बात सुनो। अचानक देवी ने खड़े होकर खतरनाक लहजे में कहा, लेकिन वेश्यों का गुस्सा एक दूसरे के खिलाफ उठ कर पहुंच चुका था। दूसरे लम्हे पूरा पंडाल चीखों और नारों से गूंज उठा। वेशी एक दूसरे से लड़ पड़े। फिर वहाँ बेडिरेक्ट नेज़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया। जोसेफ, जो इमरान के करीब ही अजीबो गरीब सूरत हाल पर शरीर कर खड़ा था, ज़्यादा देर खामोश न रह सका। दूसरे लम्हे उसने अपना नेज़ा बुलंद किया और फिर पलक झपकते ही उसका नेज़ा बिजली की तरह हवा में उड़ता हुआ खड़ी देवी के सीने में तराजू हो गया। एक जोरदार भयानक चीख देवी के मुंह से निकली और फिर वो औंधे मुंह स्टेज से नीचे आ गिरी। देवी को यूं गिरते देखकर लड़ने वाले वेशी एकदम रुक गए। वो सब हैरत और उलझन से खड़े देख रहे थे। उनके तस्वुर में भी नहीं आ सकता था कि देवी भी इस तरह मर सकती है। जोसेफ का नेज़ा देवी के दिल में घुस चुका था, इसलिए देवी नीचे गिरकर तड़प भी ना सकी और ठंडी हो गई। देवी के नीचे गिरते ही उसके पीछे बैठे हुए सफेद फार्म चीखते हुए उठ खड़े हुए। देवी को मार डाला गया। देवी तुमसे नाराज होकर चली गई। अब तुम सब पर तबाहियां नाज़िल होंगी। डॉक्टर का चेहरा गुस्से से सुलग उठा था और फिर वेशी अंधाधुंध जोसेफ और इमरान की तरफ भाग पड़े। इमरान देवी की गिरते ही उठ खड़ा हुआ था। ये तुमने क्या कर दिया काले दियो? अब हमारी जान की खैर नहीं। इमरान का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। जोसेफ की ये हरकत कतई लाशऊरी थी। अब वो पछता रहा था। वेशियों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इमरान चीखा, होशियार जोसेफ। और जोसेफ संभल कर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे इमरान ने जेब में हाथ डाला और फिर उसने तेजी से जेब से हाथ निकालकर दस्ती बम निकाला। उसकी पिन खींचकर उसने वो बम वेशियों की तरफ उछाल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उनकी तरफ बढ़ते हुए वेशियों के परपच्चे उड़ गए। बाकियों के बढ़ते हुए कदम रुक गए और दूसरे लम्हे इर्द गिर्द वेशियों ने अपने नेज़े पूरी कुव्वत से उछाल दिए। इमरान और जोसेफ कुर्सी से नीचे गिरे और नेज़ों की बारिश उनके ऊपर से होते हुए गुजर गई। अलबत्ता दो नेज़ों ने जोसेफ और इमरान को ढूंढ लिया। रुक जाओ, मैं देवी का महापुजारी हूँ और तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। डॉक्टर ने हाथ बुलंद करके चीख कर कहा और फिर चीखों और कर्राहों का शोर मदम हो गया। नेज़ा जोसेफ के बाजू में लगा था और इमरान की टांग में। दोनों ही बेहोश हो चुके थे। इस दुश्मन को उल्टा लटका दो, अब भी वक्त है। इसकी कुर्बानी से तुम देवी को खुश कर सकते हो। डॉक्टर ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर वेशी एक बार फिर जोसेफ और इमरान की तरफ दौड़ पड़े। डॉक्टर के पीछे खड़ा हुआ ब्लैक जीरो बेबसी से होंठ काट रहा था। यहाँ पिंडाल में आते वक्त डॉक्टर ने सबको कतई गैर मुसल्ला होने का हुक्म दिया था और फिर इस वक्त ब्लैक जीरो के पास रिवॉल्वर तक नहीं था। जल्द ही बेहोश इमरान को एक खंबे के साथ बांध दिया गया। जल्दी करो, उसका गोश्त काट कर उसके साथियों को खिला दो। जल्दी करो, वरना देवी का अजाब तुम पर नाजिल होने वाला है। डॉक्टर के मुंह से गुस्से की वजह से झांक बह रही थी। वो खुद भी गैर मुसल्ला होने की बिना पर बेबस था। ये वो वेशियों को आगे बढ़ा रहा था। फिर वेशी नेज़े तान कर इमरान की तरफ बढ़े। उधर जोसेफ को होश आ चुका था। वो उछल कर खड़ा हो गया। उसने बाजू में घुसा हुआ नेज़ा एक झटके से निकाल दिया। ठहरो, मैं ज़ालार तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, रुक जाओ। उसने अपने खून से तर नेज़े को बुलंद करते हुए चीख कर कहा और इमरान की तरफ बढ़ते हुए वेशी रुक गए। वो लोग खुद पागल हो रहे थे कि किसकी बात माने और किसकी ना माने। ज़ालार को मार डालो, ये देवी का कातिल है, अब ये सरदार नहीं बन सकता। डॉक्टर ने चीख कर कहा। नहीं, उसने देवी को नहीं मारा। एक आदमी भला देवी को कैसे मार सकता है? वेशियों में से एक नौजवान ने चीख कर ज़ालार की हिमायत की। शायद वो ज़ालार का कोई करीबी दोस्त था। बोका ठीक कहता है, एक आदमी भला देवी को कैसे मार सकता है? देवी किसी और की पुरस्कार कुव्वत से हमसे बिछड़ गई है। सब वेशियों ने चीख चीख कर उस नौजवान का नाम बोका था की हिमायत की और डॉक्टर को बुला गया। उसे सिचुएशन कंट्रोल करनी मुश्किल हो रही थी। तो रुक जाओ, आज का जश्न मुलतवी कर दो।
कल फिर ये जश्न होगा। तब तक देवी की तरफ से कोई पैगाम आ जाएगा। उसने कोई और राह ना देखते हुए जश्न मुलतवी कर देने की तजवीज़ पेश की थी। नहीं, ये जश्न मुलतवी नहीं हो सकता। अगर आज भेंट ना दी गई तो कल तक देवी का अजाब हम पर नाज़िल हो चुका होगा। भूखा ने चिल्लाकर कहा और फिर सब वेश्यों ने चीख चीख कर उसकी हिमायत करनी शुरू कर दी। वो सब इमरान को अभी भीड़ चढ़ाने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि उनके ख्याल में इमरान ने किसी पुरस्कार कुव्वत से जलार के हाथों से नेज़ा झपट कर देवी की तरफ निकलवाया था। ठीक है, फिर इस आदमी को देवी की भीड़ चढ़ा दो। डाककर ने सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए कहा, तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? मैं इस कबीले का सरदार हूँ। देवी की अदम मौजूदगी में मेरा हुक्म चलेगा। जोसेफ खामोश खड़ा था, चीख पड़ा, नहीं, देवी की शर्त पूरी किए बगैर तुम सरदार नहीं बन सकते। डाककर चीखा, मैं अभी देवी की शर्त पूरी करता हूँ। जोसेफ झंझला कर बोला और फिर उसने एक वेश्या के हाथ से एक छोटा सा खंजर घसीटा और लपक कर लटके हुए इमरान की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे उसका खंजर फिजा में चमका और इमरान की उस टांग के गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा कटकर अलहदा हो गया। जहाँ पहले नेज़ा घुसा था, इमरान की टांग से खून पहले ही बह रहा था। टुकड़ा कटने के बाद ज्यादा तेजी से बहने लगा। जैसे ही जोसेफ ने इमरान की टांग का गोश्त का टुकड़ा काटा, तमाम वेश्ये खुशी से उछल पड़े। जोसेफ टुकड़ा लिए भागता हुआ उस तरफ बढ़ा जिधर इमरान के शादी खंभों से बंधे खड़े थे। पहले नंबर पर सफदर था। जोसेफ तुम? सफदर हैरत और गुस्से से चीख पड़ा, जल्दी करो, ये टुकड़ा चबाकर फेंक दो, वरना इमरान की जान खतरे में है। जोसेफ ने उससे कहा और फिर खंजर से इमरान के गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर सफदर के मुंह में डाल दिया। वो इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े काटता हुआ सब साथियों के मुंह में डालता गया और इमरान की जान बचाने के लिए सब साथियों को मजबूरन इमरान का गोश्त खाना पड़ा। वैसे ये उनकी जिंदगी का भयानक तजुर्बा था, जिसे वो किसी कीमत पर दोहराने के लिए तैयार नहीं थे। मैं सरदार हो गया हूँ, मैंने देवी की शर्त पूरी कर दी है, जोसेफ ने पलटकर कहा और सब वैसी जो दिलचस्पी से ये तमाम मंजर देख रहे थे, खुशी से चीखते हुए उसकी हिमायत करने लगे। नहीं, तुमने देवी की शर्त पूरी नहीं की। देवी का ये मतलब नहीं था कि एक छोटा सा टुकड़ा काट कर खिलाया जाए, बल्कि इसका पूरा गोश्त काटकर इसके साथियों को खिलाया जाए। डाककर ने चीख कर कहा, नहीं, देवी की शर्त पूरी हो गई है, हम जलार को सरदार तस्लीम करते हैं। तमाम वेशी जलार की हिमायत में बोलने लगे। अच्छा ठीक है, मैं जलार को सरदार तस्लीम करता हूँ। डाककर ने वेश्यों को यूं जलार की हिमायत में देखकर हथियार डाल दिए और फिर जलार के नाम के नारों से पूरा पंडाल चीख उठा। मैं जलार तुम्हारा सरदार, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उस आदमी को नीचे उतार कर उसका खून फौरन बंद किया जाए। मैं कल इनके मुतालिक फैसला करूँगा। इन सबको शाही झोंपड़े में कैद किया जाए। जोसेफ ने चीख कर हुक्म दिया और चंद लम्हों बाद जोसेफ के हुक्म की तामील हो चुकी थी। इमरान के जख्म पर मखसूस जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, जिससे उसका खून बंद हो गया और इमरान समेत बाकी साथियों को खम्भों से खोलकर शाही झोंपड़े में पहुंचा दिया गया। तुम मेरे साथ आओ जलार, डाककर ने जोसेफ से कहा और फिर मेघाना के मुर्दा जिस्म को उठाकर तमाम सफेद फार्म जंगल की तरफ बढ़ गए। जोसेफ हाथ में लेकर लिए उनके साथ था। एक बहुत बड़े हॉल में ये सब लोग मौजूद थे। डाककर के बाएं हाथ पर जोसेफ बहैसियत सरदार कुर्सी पर बैठा हुआ था। लेग जीरो नंबर 6 की सूरत में उसके करीब ही बैठा था। ये बहुत बुरा हुआ। डाककर उलझन जरा लहजे में बड़बड़ाया। जोसेफ खामोश बैठा हुआ था। जलार, अब तुम्हें हमारे हुक्म पर चलना पड़ेगा, वरना तुम जानते हो हम इतनी ताकत रखते हैं कि पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे। तुम्हारे एक आदमी दर्दनाक अजाब में मुब्तला होगा। डाककर इस बार जोसेफ से मुखातिब था। वो जोसेफ को धमका रहा था। जोसेफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम मुझे धमका रहे हो? मुझे जो अनकाना कबीले का सरदार है? तुम हमारे गुलाम हो, सुना तुमने? अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की टिक्का बोटी करा दूंगा। जोसेफ गुस्से से चीख उठा। मेरी बात सुनो जलार। नंबर 6 उठ खड़ा हुआ। तुम इसे समझाओ नंबर 6, ये अभी नया सरदार बना है, इसलिए शोर मचा रहा है। डाककर ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा, मैं किसी की बात नहीं सुनता। जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा, मगर नंबर 6 उसे घसीटकर एक तरफ ले गया। बात सुनो जोसेफ, इत्मीनान से काम करो। नंबर 6 ने सरगोशी के अंदाज में जोसेफ से कहा और जोसेफ अपना असली नाम सुनकर चौंक पड़ा। वो बड़ी हैरत से नंबर 6 को देख रहा था। मैं नशारा हूँ नंबर 6 के रूप में। ब्लैक जीरो ने जोसेफ की हैरत दूर करने के लिए कहा। ओहो, जोसेफ ने इत्मीनान का सांस लिया। सुनो, तुम इत्मीनान से काम करो और फिलहाल नरमी से काम लो। जल्द ही हम इस ग्रुप पर काबू पा लेंगे।
तो उनसे अपनी मर्जी का इंतकाम लेंगे। तुम कबीले को अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। ब्लैक जीरो ने जोसेफ को समझाया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। जोसेफ सिचुएशन को समझ चुका था और फिर वो हॉल के कोने से वापस कुर्सियों की तरफ बढ़ आए। क्या ख्याल है सालार, क्या तुम अभी हमारे खिलाफ काम करोगे? डॉक्टर ने मायने टेस्ट लेने में जोसेफ से पूछा। उसका ख्याल था कि नंबर 6 ने अपनी ताकत के मुतालिक काफ़ी तफसील से जलाल को आगाह कर दिया होगा। नहीं जनाब, मैं आपका खादिम हूँ, जैसे आप हुक्म करें। जोसेफ ने इस बार दांत निकालते हुए जवाब दिया और डॉक्टर के जोरदार फातिहाना कहके से हॉल गूंज उठा। तुम अब जाओ और सुबह को इमरान और उसके साथियों को हमारे पास ले आना, हम खुद उन्हें सजा देंगे। तुम कबीले में मशहूर करा दो कि देवी ने उनसे इंतकाम लिया है और मक्खी बनाकर उड़ा दिया है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मक्खी? जोसेफ अपने लहजे की हालत ना छुपा सका। हाँ हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये तुम्हारे कबीले की रिवायत है कि मक्खी बनना सख्त तरीन अजाब है? इस बार डॉक्टर के लहजे में हैरत थी। वो तो ठीक है, मगर कबीले वालों ने शक किया तो? जोसेफ ने फौरन बात बनाते हुए कहा। ओह, तुम घबराओ नहीं, तुम कबीले के सरदार हो, तुम पर कबीले वाले शक नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। ठीक है, मैं सुबह को उन लोगों को यहाँ भेज दूंगा। जोसेफ ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, उन सबको बांधकर झाड़ी के करीब डाल देना, हम उन्हें उठाकर अंदर ले आएंगे। डॉक्टर ने कहा और जोसेफ ने रजामंदी से सर हिला दिया। नंबर 6 जलाल को बाहर छोड़ाओ। डॉक्टर ने ब्लैक जीरो को हुक्म दिया और फिर ब्लैक जीरो और जोसेफ हॉल से बाहर निकल आए। सुनो जोसेफ, ये फोटो लो और उसे इमरान को दे देना और कहना कि इस फोटो वाले आदमी का मेकअप करके मुझसे 2 घंटे बाद यहीं मिले, मैं उसका इंतजार करूंगा। ब्लैक जीरो ने जोसेफ को एक फोटो देते हुए कहा और जोसेफ सर हिलाकर वापसी बस्ती की तरफ चल दिया। चंद लम्हों बाद वो जंगल में गायब हो चुका था। इमरान के गिर्द तमाम मेंबर्स इकट्ठे थे। इमरान की टांग पर जड़ी बूटियों का लेप चढ़ा हुआ था। वो उसकी टांग में शदीद दर्द था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। क्यों दोस्तों, कैसा रहा मेरा गोश्त? मेरे ख्याल में कड़वा ही होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए सफदर से पूछा। इमरान साहब, हमारी जिंदगी का ये सबसे भयानक तरीन वाक़या है, सफदर ने जवाब दिया। परवाह न करो, अभी तो मैंने तुम्हारा गोश्त खाना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सब हंस दिए। ये जोसेफ ने अच्छा चक्कर चलाया है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जोसेफ बेहद तेज निकला है, इमरान ने जवाब दिया। वो मोती और नशारा न जाने कहाँ गायब हो गए हैं, सफदर ने इमरान से पूछा। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। आ गए सरदार अनकाना, क्या हुक्म है हमारे मुतालिक? इमरान ने उसे देखते ही हाँक लगाई। बॉस, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर वो इमरान के सामने झुक गया। और फिर ये देखकर सारी टीम की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई कि जोसेफ की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल रहे थे। अबे अबे शबेदार के बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई चुड़ैल नजर आ गई है या किसी हसीना ने ख्वाब में आने से इनकार कर दिया है? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं बॉस, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक फेल अंजाम दिया है, फॉर गॉड सेक मुझे माफ़ कर दो, जोसेफ बदस्तूर गिड़गड़ाते हुए बोला। अच्छा, माफ़ कर दिया, इमरान ने भी मुतासिर लहजे में जवाब दिया। ओह गुड बॉस, अब मुझे ज़रा अपनी टांग दिखाओ, जोसेफ ने कहा। जूता ना दिखाऊं तुम्हें, या फिर कहो तो हाथ दिखाओ? इमरान पटरी से उतर गया, मगर जोसेफ संजीदा रहा। फिर उसने इमरान को वो टांग उठाकर दिखाना शुरू कर दी जहाँ से उसने गोश्त काटा था। अरे मार डाला, तुम तो आदमखोर कबीले के सरदार हो, अब क्या बकिया गोश्त खाने का भी इरादा है? इमरान चीखा जैसे वाकई उसका वास्ता किसी आदमखोर कबीले के सरदार से पड़ गया हो। बॉस, मैं अभी दवा बनाकर ले आता हूँ, देखना अफ्रीका की जड़ी बूटियाँ किस तरह तुम्हें ठीक करती हैं। जोसेफ उठ खड़ा हुआ। ये जख्म भी तो अफ्रीका ही ने लगाया है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन जोसेफ झोंपड़ी से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद वो हाथ में किसी झाड़ी के पत्ते उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने इमरान का जख्म कपड़े से साफ करके घाव में वो पत्ते भरकर ऊपर से कपड़े से बांध दिया। अब 1 घंटे बाद बॉस आप ये भी ना बता सकेंगे कि जख्म किस टांग पर हुआ था, जोसेफ ने उसे बड़े फख्र से बताया और इमरान मुस्कुरा दिया। वाकई इन पत्तों के रखने से उसका दर्द यूं गायब हो गया जैसे ये पत्ते जादू के बने हुए हों। हाँ, अब बताओ क्या चक्कर चल रहा है, इमरान ने जोसेफ से पूछा और जोसेफ ने तमाम तफसील बता दी और फिर जेब से एक फोटो निकालकर इमरान के हवाले कर दिया। साथ ही ब्लैक जीरो का पैगाम भी दे दिया। इमरान मुस्कुरा दिया। उसने सफदर से मेकअप बॉक्स निकालने के लिए कहा। सफदर ने इमरजेंसी मेकअप बॉक्स निकाल कर दे दिया।
इस फोटो के मुताबिक इमरान ने मेकअप करना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद उसकी शक्ल बिल्कुल उसके मुताबिक हो चुकी थी। अब आपके जख्म का क्या हाल है? जोसेफ ने पूछा। दर्द तो गायब है, इमरान ने जवाब दिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने इधर उधर चलकर देखा। बिल्कुल मामूली सा दर्द था जो सिर्फ चलते हुए महसूस होता था, वरना मामला ठीक हो गया था। भाई जोसेफ, वापस दारुल हुकूमत चलकर मैं तुम्हें दुकान खोल दूंगा। तुम तो अब पूरे हकीम बन गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये जड़ी बूटियां मैं कहाँ से हासिल करूंगा? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, जड़ी बूटियों के बीज ले चलेंगे, मैं वहाँ जड़ी बूटियों का फार्म कायम कर लूंगा, तुम हकीम बन बैठना। वाह वाह, हकीम अब्दुल जोसेफ सलमा अब्दुल हुक्मा वगैरह वगैरह। इमरान की जबान चल निकली। बॉस, हालात बहुत नाजुक हैं, जोसेफ ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। तुमसे भी ज्यादा नाजुक है क्या? इमरान ने मासूमियत से पूछा और बाकी लोग इस पर हंस पड़े। बॉस प्लीज, जोसेफ ने खसियाने अंदाज में कहा। जनाब सरदार अनकाना इरशाद अली। इमरान शायद वक्त गुजारने के मूड में था। बॉस, सफेद फार्म सरदार ने कहा है कि तमाम साथियों को अपने समेत बांधकर झाड़ी के करीब बांध दो। जोसेफ ने शायद जबरदस्ती फिक्रा पूरा किया, इसलिए वो कदरे बेरब्त हो गया। ठीक है, बांध कर फेंक दो, इमरान ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया। बॉस, मौसी और नशारा आपका इंतजार कर रहे होंगे, जोसेफ ने एक और इत्तला दी, क्योंकि अब इतना वक्त गुजर चुका था जितना नशारा ने कहा था। ठीक है चलो, इमरान को भी ख्याल आ गया और वो उठ खड़ा हुआ। अब आपके जख्म का क्या हाल है? सफदर ने पूछा। इमरान ने चलकर देखा, वाकई दर्द का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। वाकई अफ्रीका असरार का खजाना वाक़ हुआ है। हर हैरत अंगेज बात जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती है, अफ्रीका में आकर मुमकिन हो जाती है। इमरान ने वो जगह देखी जहाँ जख्म था, और जब पट्टी हटाई तो वहाँ निशान तक मौजूद ना था। सारी महफिल जोसेफ की हिकमत पर ईमान ले आई। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम सफ़ेद फार्म आका के हुक्म के मुताबिक इन सबको बांधकर वहाँ डाल देना जहाँ उसने कहा था। इस तरह ये फ़ायदा हो जाएगा कि तमाम टीम इस खुफिया अड्डे में दाखिल होने में कामयाब हो जाएगी, इमरान ने कहा और सबने इस बात में सर हिलाया। फिर इमरान और जोसेफ झोंपड़ी से बाहर निकल आए। बस्ती में वेश्यों की आमद और रफत जारी थी, मगर जोसेफ की वजह से किसी ने उनसे सवाल नहीं किया और वो जंगल से होते हुए झाड़ी के करीब पहुंच गए। झाड़ी के करीब एक दरख्त की ओट में छुप गए। अभी शायद ब्लैक जीरो नहीं आया था। तुम जाओ जोसेफ, मैं खुद नशारों को मिल लूंगा, इमरान ने जोसेफ से कहा और जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। जल्द ही वो नजरों से उजल हो गया। इमरान वही दरख्त की ओट में छुपा हुआ था। उसने देखा कि झाड़ी ने हरकत की और फिर उसके देखते ही देखते झाड़ी एक तरफ हट गई और फिर उसकी जगह से जहाँ पहले झाड़ी थी, ब्लैक जीरो जो कि नंबर 6 के मेकअप में था, बाहर आ गया। वो बाहर निकलकर बड़े तजस्सुस से इधर उधर देखने लगा। उसके अंदाज में बेचैनी की आमेज़श भी शामिल थी। इमरान दरख्त की ओर से बाहर निकल आया। ब्लैक जीरो ने जब इमरान को देखा तो वो एक लम्हे के लिए चौंका, लेकिन फिर वो साकिन हो गया। इमरान तेजी से चलता हुआ उसके करीब गया। तुम कौन हो? उसके करीब पहुंचते ही ब्लैक जीरो ने पूछा। तुम्हारा खादिम अली इमरान, प्रिंस ऑफ डम, हाल मकीम अफ्रीका आकेद अनकाना, जो ना अपना है ना बेगाना, बल्कि पढ़ाई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इमरान की जबान चल पड़ी। ओ इमरान साहब, मगर आप तो शदीद जख्मी थे, ब्लैक जीरो ने बड़ी हैरत से पूछा। दरअसल हकीमुल हुक्मा जनाब अब्दुल जोसेफ फ़ख्र अफ्रीका का इलाज किया था, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, हालात बेहद नाजुक हैं, मैंने यहाँ का तमाम निज़ाम देखा है, बेहद वज़ी और इस इंतज़ाम कर रखा है, धड़ाधड़ यूरेनियम निकाला जा रहा है और उसके लिए बाकायदा प्लांट लगा रखा है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ब्लैक जीरो ने असल मतलब पर आते हुए कहा। अब क्या करना है, यहीं खड़े गपशप लगानी है, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसे खतरा था कि कहीं किसी की नज़रों में ना आ जाए। ओह चलिए, आपका नंबर 3 है और आप डॉक्टर के इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं, ब्लैक जीरो ने नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। और नंबर 3 कहाँ है? इमरान भी उसके पीछे था। हम यहाँ से सीधे नंबर 3 के कमरे में जाएंगे, मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है, ब्लैक जीरो ने बड़ा मुहर्रम सा जवाब दिया और इमरान खामोश रहा। वो सीढ़ियाँ उतरते चले गए और फिर एक दरवाजे में दाखिल हुए तो वो एक बेहद वसी और अरीज मैदान में मौजूद थे। इमरान वाकई हैरान रह गया। वो तेजी से एक दूसरे के पीछे चलते रहे और एक गैलरी में से गुजर रहे थे कि अचानक एक मोड़ पर डॉक्टर उनसे आ टकराया। मेरे साथ आओ नंबर 6 और नंबर 3, उसने बड़े सख्त लहजे में कहा।
ब्लैक जीरो ने बड़े मायने खेज अंदाज में इमरान की तरफ देखा और फिर डाककर के पीछे चल दिया। इमरान भी साथ था। वो तेजी से चलते हुए मुख्तलिफ कमरों से गुजरते हुए एक खासे वसी कमरे में पहुंच गए। बैठो, डाककर ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो दोनों मेज के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। डाककर भी मेज के पीछे एक खासी बड़ी कुर्सी पर बड़ा जवान हो गया। नंबर 6, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डाककर ने पुरस्कार की मुस्कुराहट से कहा। प्रोग्राम से आपका क्या मतलब है? ब्लैक जीरो ने पूछा। मुझसे पूछ रहे हो? डाककर के चेहरे पर अचानक शदीद गुस्से के आसार नजर आए। उसका दायां हाथ मेज के किनारे पर था। उसकी उंगली ने हरकत की और फिर मेज के किनारे पर लगे हुए बेशुमार बटनों में से एक बटन उसने दबा दिया और दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो उछल पड़ा। उसके दोनों हाथ और पांव कुश्ती के साथ आईनी हलकों से जकड़े जा चुके थे। इसका क्या मतलब है? ब्लैक जीरो ने अपने लहजे में शदीद हैरत पैदा करते हुए कहा। नंबर 3, तुमने किसी ताजुब का इजहार नहीं किया? डाककर ने इमरान को घूरते हुए कहा। अब इमरान फंस चुका था। उसने तो नंबर 3 की आवाज भी नहीं सुनी हुई थी। अब वो बोलता तो क्या और ना बोलता तो क्या, और अगर ना बोलता तो डाककर जो शायद फिलहाल इस पर शक नहीं कर रहा था उसके मुतालिक भी मशकूक हो जाता। अजीब उलझन थी। नंबर 3, बॉस खवा मखवा मुझ पर शक कर रहा है। तुम बॉस को समझाओ। अपने खास आदमियों पर शक करना अच्छा नहीं और मैं इस मामले को आगे ले जाऊंगा। इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, ब्लैक जीरो इमरान से मुखातिब हो गया। उसने दरमियानी चंद अल्फाज एक दूसरे लहजे में कहे थे। वो उसे इंतहाई तेजी से कह गया था मगर इमरान उसका असल मतलब समझ गया था। मैं अभी तुम्हारा कच्चा चिट्ठा बता देता हूँ नंबर 6, ब्लैक जीरो के जवाब में डाककर ने बड़े गुस्से से कहा। बॉस, आखिर नंबर 6 का कसूर क्या है? इमरान पहली बार बोला। लहजा वही था जिसमें ब्लैक जीरो ने दरमियानी अल्फाज बोले थे। ये नंबर 6 नहीं है। डाककर ने इंकशाफ किया। उसे इमरान के लहजे पर शक नहीं हुआ था। साफ जाहिर था कि इमरान ने नंबर 3 के असल लहजे की बड़ी कामयाबी से नकल उतारी थी। वो डाककर के इस इंकशाफ पर बाकायदा उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है बॉस? इमरान के लहजे में शदीद हैरत टपक रही थी। अभी एमोनिया आ जाता है तो पता चल जाता है। डाककर ने जहरीली मुस्कुराहट से जवाब दिया। ब्लैक जीरो ने एमोनिया का नाम सुना तो इत्मीनान की एक तवील सांस ली। बॉस, आप खवा मखवा मुझ पर शक कर रहे हैं? डाककर के इंकशाफ के बाद ब्लैक जीरो पहली बार बोला। उसके लहजे में बेहद इत्मीनान था। इमरान भी उसके इत्मीनान पर दिल ही दिल में मुस्कुरा पड़ा। वो समझ गया था कि ब्लैक जीरो ने जिस मेकअप बॉक्स से नंबर 6 का मेकअप किया था